Greetings students, welcome back to your maths class, and today's topic is proportion. As you all have studied about ratios in our last video, now what we have studied over there was comparing two quantities of same kind and same unit. Over here it is again the same kind, but now there is a comparison between two कैटेगरीज. मतलब एक कंपैरिजन हुआ है, दूसरा एक और कंपैरिजन किया है, एंड लेटर ऑन दोस टू कंपैरिजंस आर इक्वेटेड. That is known as a proportion. Basically, what in definition a proportion is told to us, four numbers are said to be in proportion when the quantities, like अगर मेरे पास A और is to B का एक proportion रेशियो है, and I have another C is to D, I have another ratio, then they can be in proportion. They can be in proportion when they are equal. When they are equal. When the ratios are equal, then they are said to be in proportion. Basically, now हमने रेशियो में सीखा था कि दैट दिस इज नोन एज एंटीसीडेंट एंड दिस इज नोन एज कॉन्सिक्वेंट. सो लाइक दैट रेशियो के जैसे हमारे पास यहाँ प्रपोर्शन में भी कुछ टर्म्स होते होंगे. अब प्रपोर्शन बेसिकली लिखा कैसे जाता है, ए इज टू बी प्रपोर्शन सी इज टू डी. राइट नाउ दिस इज द फर्स्ट टर्म. This is my second term. This is my third term. And this is my fourth term. Right? So all of the terms are named together. Now, what is there? अब जैसे A और D है, फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म दोनों एकदम एक्सट्रीम पे है, दोनों एकदम लास्ट कॉर्नर्स पे है. सो दे आर नोन एज एक्सट्रीम्स. A and D are known as extremes. तो बाकी बचे B और C. So B and C are known as means. वो दोनों अंदर हैं, सेफ साइड पे हैं, इसीलिए they are known as means. So now if you need to find that all the four numbers, अब अगर आपको नंबर्स रेशियो में नहीं गिवन है, प्रोपोर्शन में भी गिवन नहीं है, और आपको बताना है कि वो चारों प्रोपोर्शन में सेट होते हैं, तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल पुट ऑल द फोर नंबर्स इन दिस फॉर्मेट. The same way the numbers are arranged in the same chronological order. Later on, what you will do is you will find the product of means and product of extremes. After finding the products, you should see that both the products you have found, they should be equal. अब जैसे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स आर बी इंटू सी. मीन्स हमारे बी और सी थे, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो बी इंटू सी. एक्सट्रीम्स हमारा ए और डी था, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज ए इंटू डी. ऑलवेज रिमेंबर दैट. ओके, नाउ दिस इज नोन एज फोर्थ प्रोपोर्शनल टू दी रिमेनिंग फर्स्ट थ्री टर्म्स. ए बी और सी का फोर्थ प्रोपोर्शनल टर्म क्या कहलाता है? डी कहलाता है, या वॉट एवर. फोर्थ मतलब लास्ट टर्म इज नोन एज दी फोर्थ प्रोपोर्शनल. ओके, देन नाउ वी हैव समवेयर देयर इज अ टर्म you will find a continued proportion. With a continued proportion where you will not find any four numbers in the question. So how to find the proportion? Proportion में तो चार स्पेसेस होती हैं, चार डिजिट डालने की. तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में ये होता है A is to B. जो सेकेंड नंबर है हमारा, that will again be repeated in the second ratio as the first term. So it will become A is to B proportion B is to C. You can see that B and B, प्रोपोर्शन से पहले भी B आ रहा है, प्रोपोर्शन के बाद भी B आ रहा है. So this B is known as our third proportion. Sorry, this B is known as mean proportional. What it is known as? Mean. This B
इसका प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए मीन प्रोपोर्शन कहलाता है। वो कैसे कहलाता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हम निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, राइट। तो मीन्स क्या है, b इंटू बी इज इक्वल्स टू एक्सट्रीम्स क्या है, a इंटू सी। तो b इंटू बी इज बी स्क्वेयर एंड a इंटू सी इज a इंटू सी, और ac you can write. So over here this can also be written as b square is equals to ac, or b is equals to under root ac, right. So this, either this or this is known as mean proportional. What it is known as, mean proportion. Or even there is another term which is known as geometric mean. It is also known as geometric mean. It is also known as geometric mean. ओके, सो ये तो था अभी हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब ध्यान रखिएगा कि अब हम एग्जाम्पल्स इसी तरह से ले रहे हैं कि आपको पहले बेसिक प्रोपोर्शन लेंगे, उसके बाद हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन लेंगे, ताकि आपको रिविजन में, मतलब एक्सरसाइज अंडरस्टैंड करने में, एक्सरसाइज इन द सेंस द क्वेश्चंस व्हिच वी विल बी टेकिंग, तो उन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा आसानी हो। ओके, सो लेट्स टेक फ्यू एग्जाम्पल्स फॉर द proportion. First, proportion. Question here you can see is that you need to show that 30, 40, 45 and 60 are in proportion. So आपको भी ये बताना है कि ये proportion में है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, put them in the format of the proportion. तो पहला नंबर पहली जगह पे, एक ही जगह पे आ जाएगा, second number will come on second position of the proportion, then the sign of proportion, then the third number, and then in the last fourth number. जैसा chronological order हमारे क्वेश्चन में था, उसी ऑर्डर से हमने यहाँ पे भी क्वेश्चंस नंबर्स को पुट कर दिया। नाउ व्हाट डू वी डू, हम अगर हमारा फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। व्हाट आर मीन्स, द टर्म्स, द वैल्यूज और द टर्म्स कमिंग इन द मिडिल। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है हमारी 40 इंटू 45 इज इक्वल्स टू व्हाट आर एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, the terms coming on the ends, 30 into 60, right. तो एक्सट्रीम्स थे हमारे 30 और 60, तो 30 इंटू 60 क्या होता है, 3 6 18, डबल जीरोस 1800 आ गया। लेट्स फाइंड आउट कि इसका प्रोडक्ट भी 1800 आता है क्या, 0 आ जाएगा, 4 5 20, 4 4 16 प्लस 2 1800। एज यू कैन सी दोनों का LHS का प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज ऑल्सो 1800 एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज ऑल्सो 1800। दैट मीन्स हमारा जो नंबर्स, हमारे पास जो नंबर्स थे 40, 30, 45, 60, ऑल दीज 4 नंबर्स आर इन प्रपोर्शन। और ध्यान रखिएगा इसी रेशियो में, इसी फॉर्मेट में अगर नंबर लिखे जाएंगे तो ही वो प्रपोर्शन में आएंगे, अदरवाइज अगर हम इनका थोड़ा सा भी ऑर्डर चेंज कर देंगे देन दे वोंट बी इन proportion. Okay, so let's take another question. Now you can see the next question we have is, if 2 is to 9 proportion x is to 27, मतलब 2, 9, x and 27 are already in proportion. We are told that कि ये चारों नंबर proportion में हैं, तो x का वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है तो 2 is to 9 proportion x is to 7, 27, तो वैल्यू फाइंड करने के लिए आप निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। इन एवरी क्वेश्चन 99% ऑफ एवरी क्वेश्चन ऑफ प्रोपोर्शन दिस फॉर्मूला इज गोइंग टू बी यूज्ड। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हमारा हो जाएगा 9 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एक्सट्रीम हो जाएगा 2 इंटू 27। दिस 9 इज मल्टीप्लाइंग ओवर हियर, यहाँ से इसको वहाँ भेज देते हैं ताकि x अकेला यहाँ रह जाए। तो 2 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 9, 9 वन ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो यू आर लेफ्ट विद x का वैल्यू 2 3 ज़ा 6, x का वैल्यू फाइंड हो गया। तो आपका प्रपोर्शन हो जाएगा 2 is to 9, proportion 6 is to 27।
let's move further and find out the next question's concept. See, the next question we have is find the fourth proportional of 8, 36, 6. Okay, we have three numbers. हमें fourth value निकालनी है. तो मैंने आपको कहा था हमारा रेशियो अगर A is to B proportional C is to D होता है तो D हमारा fourth proportional मतलब लास्ट वैल्यू हमारी X होती है. So let the fourth proportional be X. तो हमारा प्रोपोर्शन का फॉर्मेट बन जाएगा 8 is to 36 proportion 6 is to x. हमें फोर्थ वैल्यू निकालनी है तो x हो जाएगा. नाउ प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. मीन्स क्या है आपका 36 और 6 और एक्सट्रीम्स क्या है 8 इंटू एक्स. दिस 8 इज मल्टीप्लाइंग ओवर हियर. इसको यहाँ से यहाँ ले आते हैं ताकि x अकेला रह जाए और उसकी वैल्यू फाइंड हो जाए. 36 इंटू 6 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू x. 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6. तो 9 3 ज़ा 27. तो आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल की वैल्यू क्या आ गई 27. सो देयरफॉर आपका प्रोपोर्शन का रेशियो क्या बन जाएगा 8 is to 36 proportion 6 is to 27. Okay, so this is how you have to find the values. तो हमें देखो अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए सब में क्या एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है. सो एवरीवेयर wherever you will be finding any value for the proportion of the given question you need to follow the formula product of means is equals to product of extremes. Let's take another type of question. Now the question we have is of continued proportion. Continued proportion में हमने पढ़ा था कि A is to B proportion B is to C. मतलब मिडिल वाला जो वैल्यू दोनों सेम होना चाहिए, राइट. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव 36, 54 एंड x. तीन ही नंबर हैं हमारे पास. तो इनको हम इन वैल्यूज में कैसे पुट करेंगे. C 36 proportion 54. अब B की प्लेस पे 54 आया है तो दूसरे B की प्लेस पे भी 54 आएगा और C की प्लेस पे x आ जाएगा. सो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. तो मीन्स हो जाएगा 54 इंटू 54. एक्सट्रीम हो जाएगा 36 इंटू एक्स. 36 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ के डिवाइड करेगा. 54 इंटू 54 अपॉन 36 इज इक्वल्स टू एक्स. 6 6 ज़ा 36, 6 9 ज़ा 54, 6 1 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54. x का वैल्यू आ गया 81. सो हियर इन प्लेस ऑफ x what will be the value 81. Okay, so this is what your continued proportion is. Please practice more questions. In any book you will find there will be many more questions available on Google, in any other reference books or your even textbooks also. So please practice more and more questions so that you are much more in handy with the concept. Let's take another question. Now our question is we need to find the third proportion of 8 and 12. Of 8 and 12. तो basically क्या करना है आपको 8, 12 and the third value you need to find. तो देखो अब ये क्वेश्चन हमारा ना जस्ट लास्ट वाले कंटिन्यूड प्रोपोर्शन जैसा हो गया कि हमारे पास तीन नंबर गिवन है. तो प्रोपोर्शन में अगर हम इसको लिखेंगे तो 8 is to 12 प्रोपोर्शन 12 is to x हो जाएगा. बस प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. मीन्स है 12 इंटू 12, एक्सट्रीम है 8 इंटू x. 8 इज मल्टीप्लाइंग, 8 यहाँ आएगा तो डिवाइड करेगा. 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12. तो 6 3 ज़ा 18. x का वैल्यू कितना आ गया 18. सो 8, 12 and 18 will be our third proportion. 18 will be our third proportion to 8 and 12. इसी तरीके से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं. जैसे एक स्टेटमेंट आ सकता है इफ द थर्ड प्रोपोर्शन टू 7 and x इज 28. मतलब आपका क्वेश्चन है इफ थर्ड प्रोपोर्शन
2, 7 and x is 28. तो आपको x का वैल्यू फाइंड करना है. तो दैट मीन्स आपके पास 7 और 8 का थर्ड वैल्यू इतना है. तो 7:x proportion x:28 हो जाएगा. x into x is equals to 7 into 28. x into x is x square. 7 into 28 करेंगे तो 7 8 are 56. 7 2 are 14 plus 5 is 19. Square is over here. आप वैल्यूज थोड़ा सा अब इस तरह से हमें इसे पता लगाना है कि कौन से किसी एक नंबर को when we multiply some number with the same number ताकि हमारा प्रोडक्ट 196 आए. तो फैक्टराइज करिए 196 को. तो फैक्टराइज करोगे तो आएगा लेट्स टेक 2 2 9s are 18 कैरी 1 2 8s are 60 2 4s are 8 2 9s are 7 7s are and 7 1s are. तो देखो हमने क्या 2 into 2 into 7 into 7 196 आ रहा है. तो 2 into 2 मतलब क्या, ये वाली वैल्यू अभी क्वेश्चन से हट के है. ठीक है, ये एक आपका वर्किंग नोट है. 2 और 2 को अगर मैं 2 स्क्वायर लिख दूँ और 7 को मैं 7 स्क्वायर लिख दूँ तो क्या हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग व्हेन द बेसिस आर मल्टीप्लाइंग बीइंग डिफरेंट एंड पावर्स आर सेम, तो बेसिस को पहले मल्टीप्लाई करके पावर सेम कर दे तो क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 196 का. ये वर्किंग नोट हमें मिला यहाँ पे. तो इससे हमें पता चला कि 14 को 14 से मल्टीप्लाई करने पे 196 मिलता है. तो यहाँ पे क्या हमें एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 96 चाहिए था. यस. तो कौन सा नंबर ऐसा है 14. सो देयरफॉर x का वैल्यू क्या आ जाएगा 14. सो इन प्लेस ऑफ x यू विल हैव 14. ओके. सो let's take one more question for the concept, and that question is a word problem. Before moving on to the word problem, एक question और मुझे मिला जिसमें हम कर सकते समझ सकते हैं. You need to find the mean proportional between 6 and 24. मतलब 6 और 24 के बीच में हमें कोई mean proportional निकालना है. और mean proportional हमने पढ़ा था that was a term for कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. तो 6 और 24 के बीच में हमें एक वैल्यू चाहिए. तो 6 20x एंड 24 हो जाएगा. प्रोपोर्शन में रखोगे तो 6 is to x, proportion x is to 24. प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. मीन्स है x इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एक्सट्रीम्स है 6 इंटू 24. x इंटू एक्स को x इंटू एक्स ही रहने दीजिए. 6 इंटू 24 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 6 4s are 24, 6 2s are 12 plus 2 is 14. When you will factorize, you will get to know that 12 12s are 144 and 12 1s are 12. तो x इंटू एक्स 144 का फैक्टराइज किया तो 12 इंटू 12. तो therefore x का वैल्यू क्या आ गया 12. So the mean proportional term in between 6 and 24 is 12. Okay. Now this was your continued proportion, mean proportional, third proportional, fourth proportional concept. Now let's take a question कि अब अगर हमें word problem आती है तो उस word problem को हम proportional में कैसे put करेंगे. Okay, so let's take a question. Now the word problem I have is at a certain time a tree 6 meter high. I have a tree which is 6 meter high. Height of this tree is 6 meters. Okay. And at a time मतलब कोई एक दिन के एक समय पे सपोज करिए at morning 10 o'clock आप सबने का शैडो सिस्टम पढ़ा है साइंस में, तो बस वही कॉन्सेप्ट ले रहा है. अगर सुबह 10 बजे एक 6 मीटर हाई का ट्री है और उसका एक शैडो बनता है यहाँ पे. दिस इज द शैडो formed by the tree and the length of the shadow is 8 meters. Okay. At the same time इस ट्री के पास में कहीं पे एक पोल है हमारे पास.
Okay, so this pole, we don't know the measurement of this, the height of this pole. You need to find the height of the pole. So let the height of the pole be x. और जब 10 बजे अगर इस ट्री 6 मीटर हाई ट्री का लेंथ, शैडो का लेंथ 8 मीटर होता है, तो 10 बजे ही ये कितना लंबा पोल है जिसकी शैडो जो है वो 20 मीटर लॉन्ग है. तो हम क्या करते हैं, हमने लेट ए, प्रोपोर्शन में ए बी सी डी होता है, तो ए को हमने माना ए बी हाइट ऑफ ट्री, बी को हम मान रहे हैं बी लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ट्री. ठीक है, फिर सी क्या आएगा, सी बी हाइट ऑफ पोल, और डी क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ शैडो ऑफ पोल. सीक्वेंस ये रखना है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो बस अब ए इज टू बी प्रोपोर्शन सी इज टू डी होता है. तो ए का वैल्यू था 6, प्रोपोर्शन बी का वैल्यू था 8, सी का वैल्यू हमें मालूम नहीं था तो हमने उसको x माना था, और डी का वैल्यू था 20. नाउ यू कैन सी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. मीन्स है 8 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एक्सट्रीम्स है 6 इंटू 20. x इज इक्वल्स टू 6 इंटू 20 अपॉन 8. ये 8 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ के डिवाइड कर रहा है. तो 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6. तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3 5 ज़ा 15 मीटर्स. सो ये 15 मीटर्स क्या है, हाइट ऑफ दी पोल. अगर एक ट्री का 6 मीटर हाई ट्री है, उसका 8 मीटर लंबा शैडो बन सकता है सुबह 10 बजे, तो उसी समय एक 15 मीटर हाई पोल का 20 मीटर हाई 20 मीटर लॉन्ग शैडो फॉर्म होगा. ओके, सो दिस इज व्हाट योर क्वेश्चन वाज सपोज टू बी. हमने क्या किया, हाइट ऑफ ट्री एंड लेंथ ऑफ शैडो, उसका एक फ्रैक्शन बनाया. तो हाइट ऑफ ट्री, लेंथ ऑफ ट्री, लेंथ ऑफ शैडो मान लीजिए, चलिए शैडो कर दीजिए इसको. उसी तरीके से हाइट ऑफ पोल और लेंथ ऑफ शैडो ऑफ पोल. तो ऊपर हमने हाइट रखा, नीचे लेंथ रखा, तो दूसरे रेशियो में भी ऊपर हाइट रखेंगे और नीचे लेंथ ऑफ शैडो रखेंगे. बस दिस यू हैव टू मेक श्योर कि अगर हमने फर्स्ट जो फ्रैक्शन बनाया है, जो रेशियो बनाया है, उसमें एंटीसीडेंट अगर हाइट ऑफ ट्री है और कॉन्सिक्वेंट लेंथ ऑफ शैडो है, तो सेम प्रपोर्शन मतलब रेशियो में, सेकेंड रेशियो में भी आपका वही काम होगा. ओके, so here was my topic proportion, and I hope you all have understood, and if you have any doubt, mention it in the comment section. And if you have liked the video and if you have understood the concept, so please like the video and subscribe it and share it. Thank you so much.